My dear friends, today we're meditating on Psalm 85:12. मेरे दोस्तों, आज हम मनन करने जा रहे हैं भजन संहिता अध्याय 85 वचन 12। It says, "The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest." फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। My dear friends, today are you saying my life is all at a loss? दोस्तों, आज आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरा जीवन पूरा नुकसान से भरा हुआ है। What I have is not working for me. जो मेरे पास है वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। I'm a failure at my job. मैं अपने काम पर असफल हूँ। My business is failing. मेरा जो बिजनेस है वो असफल होता जा रहा है। My relationships are a failure. मेरे जो रिश्ते नाते हैं वो असफल होते जा रहे हैं। I don't have peace in my home. और मेरे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है। I am struggling in my studies. मैं अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहा हूँ। You may say, whatever I have, whatever I'm doing is not yielding fruit. आप कह रहे होंगे कि जो भी मेरे पास है, जो भी मैं कर रहा हूँ वो फल नहीं ला रहा। I'm trying to work so hard. मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। I'm working hard in my job, working hard in my studies, I'm working hard in my relationships, but nothing is yielding fruit. मैं अपने काम में मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई में मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने रिश्तों में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी मेरे लिए फल नहीं ला रहा। My dear friends, God will bless you today. प्यारे दोस्तों, आज आपको प्रभु आशीष देगा। Whatever He has given you is the best. उसने आपको जो भी दिया है वो सबसे उत्तम है। From today you will see the fruit of your labor. आज से आप अपनी मेहनत के फल को देखने पाएंगे। That's what happened in the life of this dear brother. इस प्यारे भाई के जीवन में यही तो हुआ है। His name is Bobby and he was working as a teacher in Eluru. इनका नाम बॉबी है और ये एलुरु में शिक्षक के रूप में काम करते थे। And he wanted to start a business, so he quit his job and started the business in 2023. ये बिजनेस करना चाहते थे और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 2023 में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। And when he started the business, it was not yielding any fruit and he was not seeing any profit. जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, इन्हें कुछ भी फल नहीं दिख रहा था, कोई भी मुनाफा ये नहीं पा रहे थे। So all his friends started mocking him, सारे जो इनके दोस्त थे इनका मजाक उड़ाने लगे, putting him down. इन्हें नीचा दिखाने लगे। Even his family members discouraged him. इनके जो परिवार के सदस्य थे वो भी निराश करने लगे। You are not good enough for anything. कहने लगे कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, You can't do anything. तुम कुछ नहीं कर सकते, You are useless. तुम एकदम बेकार हो And you're going behind useless things, doing your business. तुम बेकार के काम कर रहे हो जिसमें तुम अपना व्यापार कर रहे हो। He had so much of pain in his heart because of this. इसके कारण इनके हृदय में बहुत ही दुख होता था। He was not able to move forward. और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। He was very depressed and discouraged. ये बहुत ही निराश और हताश हो गए थे। And because he was not seeing any success in his business, he felt like time was running out and he had to close down everything. व्यापार में कुछ भी सफलता नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने सोचा कि समय ऐसे ही निकल रहा है, मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। But on 19th October 2024, लेकिन 19 अक्टूबर 2024 में in this broken situation, ऐसी टूटी हुई दशा में he was going through YouTube and he saw the today's blessing video on the Jesus Calls YouTube Telugu channel. ये YouTube देख रहे थे और इन्होंने वहाँ देखा टुडेज ब्लेसिंग वीडियो जीसस कॉल्स YouTube तेलुगु चैनल पर। He saw that Dr. Paul Dinakaran was sharing a message and he was praying. इन्होंने देखा डॉक्टर पॉल दिनाकरन वहाँ पर संदेश दे रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं। He also was praying along. और ये भी उनके साथ प्रार्थना करने लगे। And during the prayer, suddenly Dr. Paul called out his name. और प्रार्थना के दौरान डॉक्टर पॉल दिनाकरन ने इनका अचानक से नाम पुकारा। And he said, Bobby, you are free in Jesus' name. इन्होंने कहा कि बॉबी, तुम यीशु के नाम में आजाद हो चुके हो। God will bless you.
परमेश्वर आपको आशीष देगा। Bobby, you are free in Jesus' name. God is blessing you. He was shocked to hear his name ये अपना नाम सुनकर बहुत हैरान हो गए, because he had never shared his problems with Dr. Paul. क्योंकि इन्होंने अपनी जो समस्या है वो कभी डॉक्टर पॉल दिनकरन को नहीं बताई थी। And after the prayers, और फिर प्रार्थना के बाद he was delivered from all his bondages and he was free. इन्होंने अपने सारे बंधनों से छुटकारा पाया और ये पूरी तरह से आजाद हो गए। He felt God's peace इन्होंने परमेश्वर की शांति महसूस की and he could see all the problems in his life disappear. और इन्होंने देखा कि इनके जीवन की सारी समस्याएं चली गई हैं। God started to bless his business परमेश्वर ने इनके जो बिजनेस थे उन्हें आशीष देना शुरू कर दिया and he is seeing 10 times more profit today. और आज ये 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। Yes, my dear friends, he was so depressed because the business that he had was not yielding any fruit. हाँ दोस्तों, जब इनका बिजनेस कोई फल नहीं ला रहा था तो ये अपने जीवन में बहुत ही निराश थे। The people around were mocking him. इनके आसपास के जो लोग थे इनका मजाक उड़ा रहे थे, But then what God had given him was for his good. लेकिन जो परमेश्वर ने इन्हें दिया वो इनकी भलाई के लिए था। God met him and encouraged him and blessed the fruit of his labor. परमेश्वर ने इनके साथ मुलाकात की, इन्हें प्रोत्साहित किया और इनके मेहनत के फल के ऊपर आशीष दी। His land started yielding its harvest. और इनकी भूमि अपनी उपज देने लगी। Yes, my dear friends, today everything may be a failure in your life. हाँ मेरे दोस्तों, आज शायद आपके जीवन में सब कुछ असफल होता जा रहा होगा। You may say, why am I in this family? Why am I in this school? Why am I doing this job? Why am I doing this business? आप शायद कह रहे होंगे कि मैं इस परिवार में क्यों हूँ, मैं इस स्कूल में क्यों हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये व्यापार क्यों कर रहा हूँ। From today, tell the Lord, thank you, Lord, that you've blessed me with this job. आज से प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मुझे इस काम के द्वारा आशीष दी है। Whatever you give me has been for my good. जो भी तूने मुझे दिया है वो मेरी भलाई के लिए है। Thank you for my husband. Thank you for my wife. Thank you for my children. It is for my good. मेरे पति के लिए धन्यवाद, मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये मेरी भलाई के लिए हैं। Thank you for my school. Thank you for my business. You've given the best for me. मेरे स्कूल के लिए धन्यवाद, मेरे व्यापार के लिए धन्यवाद, तूने मुझे सबसे उत्तम दिया है। Thank him every day for what you have. आपके पास जो भी है उसके लिए हर रोज उसे धन्यवाद दें। For what God has given you. परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसके लिए। And you will start seeing the harvest. और आप उसकी फसल देखना शुरू कर देंगे। You will see peace and joy in your family. आप अपने जीवन में शांति और आनंद देखते जाएंगे। You will see a wonderful increase in your job. आप अपनी नौकरी में अद्भुत बढ़ोतरी देखते जाएंगे। You will see profits in your business. आप अपने व्यापार में लाभ देखेंगे। You will see marks that you have never scored before in your studies. अपनी पढ़ाई में आप ऐसे मार्क्स पाएंगे जो आपने कभी नहीं पाए थे। Once you start thanking God for what He has given you. जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे धन्यवाद देने के बाद। And saying that God, you have given me the best. You have given me what is good. बस यही कहने के द्वारा कि प्रभु जो भी तूने मुझे दिया है वो सबसे उत्तम दिया है। You will see increase. आप बढ़ोतरी देख पाएंगे। You will see the fruit. आप फल देख पाएंगे। You will see the harvest. आप फसल देख पाएंगे। Today, shall we thank Him and pray? आइए आज उसे धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। Lord, thank you that you have given me the best in everything. प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने सारी बातों में मुझे उत्तम दिया है। Thank you for giving me a wonderful family. मुझे अद्भुत परिवार देने के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you for giving me a wonderful job. मुझे अच्छा काम देने के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you for giving me good health. मुझे अच्छी सेहत देने के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you for giving me a wonderful school, a wonderful college. मुझे अच्छा स्कूल या मुझे अच्छा कॉलेज देने के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you for giving me so many responsibilities, giving me a business. धन्यवाद कि तूने मुझे बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं, तूने मुझे बिजनेस दिया है। You've given what is the best, Lord. जो सबसे उत्तम है वही तूने मुझे दिया है प्रभु। Today, as your children, thank you.
आज तेरी संतान के रूप में तुझे धन्यवाद देते हैं। Bless every aspect of their life. इनके जीवन के हर पहलू को आशीष दे। From today, let it start yielding fruit. आज से ये फलवंत होते चले जाएं। Let them see the harvest for all the labor that they put in. इन्होंने जो भी मेहनत की है उसकी सारी फसल को ये देखने पाएं। Let them see success in everything. ये हर बात में सफलता को देखते चले जाएं। In their work, in their relationships, in their studies. इनके कामों में, इनके संबंधों में, इनकी पढ़ाई में, Even in their health, Lord. इनकी सेहत में भी प्रभु Let them see an increase. ये बढ़ोतरी को देखने पाएं। Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।